وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ، اور بے شک تم لوگوں نے جان لیا، جنہوں نے تم میں سے، جنہوں نے منکم فی السبت، جنہوں نے ہفتے کے دن میں زیادتی کی، اور بے شک تم لوگوں نے جان لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ہفتے کے دن تم میں سے زیادتی کی، یعنی فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً، فَقُلْنَا لَهُمْ، ہم نے کہا ان کو، کونوا، ہو جاؤ، قِرَدَةً خاسئین، ہو جاؤ تم بندر ذلیل، فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، پس ہم نے بنا دیا ان کو عبرت ان لوگوں کے لیے جو اس وقت موجود تھے، وما خلفہا، اور جو بعد میں آنے والے تھے، وموعظۃ للمتقین، اور نصیحت بنا دی ہم نے ان کو، ان لوگوں کے لیے، اور نصیحت بنا دی ہم نے ان لوگوں کے لیے جو ڈرنے والے ہوں گے، جو ڈریں۔ اب اس آیات کا ترجمہ، جیسے مسلمانوں کے لیے جمعہ کا دن معظم قرار دیا گیا ہے، اسی طرح یہود کے لیے ہفتے کا دن معظم قرار دیا گیا تھا، اور اس کی تعظیم کے لیے یہ حکم بھی تھا کہ اس دن مچھلیوں کا شکار نہ کریں۔ ایک طرف تو یہ حکم تھا اور دوسری طرف ان کا امتحان تھا، اور وہ امتحان اس طرح سے تھا کہ دوسرے دنوں میں مچھلیاں عام حالات کے مطابق پانی میں اندر ہی رہتی تھیں، اور ہفتے کے دن، سنیچر کے دن خوب ابھر کر پانی پر آ جاتی تھیں، اب اس کا تذکرہ سورہ اعراف میں بھی آتا ہے۔ اب اگر سامنے آ جاتی تھیں اس لیے ہفتے کے دن، اس لیے ان لوگوں نے ان کے پکڑنے کے لیے ہیلے نکالے، اور یہ کہا کہ ہفتے کے دن آنے سے پہلے جال اور مچھلی پکڑنے کے کانٹے پہلے سے پانی میں ڈال دیتے، یعنی جمعہ کے دن ڈال دیتے، اور وہ ان میں پھنس کر رہ جاتی۔ جب ہفتے کا دن گزر جاتا تو ان کو پکڑ لیتے، جا کر اس جال کو کھینچ لیتے، اور اپنے نفسوں کو سمجھا لیتے کہ ہم نے ہفتے کے دن ایک مچھلی بھی نہیں پکڑی، اور تو خود سے جال بچھا کر اور کانٹوں میں بچھا گئے۔ یہ جال اور کانٹے ہم نے یہ نہیں کہتے کہ جمعہ کے دن ڈالے تھے، اس کو منع نہ کیا، اور جمعہ کے دن ہم کر کے اور ہفتے کے دن گزار کے پھر جاتے نکال آتے، تو اس کو وہ حلال سمجھتے ایسا کرنا۔ تو کچھ لوگ ان میں سے ان کو منع کرنے والوں نے منع کیا، جو ان میں سے تھے بڑے، یعنی جانتے تھے کہ یہ زیادتی ہے، جیسے عالم راہب ان کے بھی تھے، منع کیا تو نہ مانے، لہٰذا اللہ پاک کی طرف سے ان پر عذاب آ گیا، ان کو اللہ پاک نے بندر بنا دیا۔ جب یہ لوگ بندر بن گئے تو بندروں کی طرح آوازیں نکالتے تھے، ان کی دمیں بھی پیدا ہو گئیں، کہتے ہیں کہ ان کی دمیں بھی پیدا ہو گئیں۔ جو لوگ ان کو منع کرتے تھے وہ ان کے پاس گئے اور کہا کہ ہم نے تم کو منع نہیں کیا تھا کہ تم یہ سراسر
ज़्यादती कर रहे हो, अल्लाह पाक ने का वादा था कि ना करो, तो सर हिलाकर जवाब देते थे। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से नकल किया है कि हफ्ते के दिन ज़्यादती करने वाले बंदर बना दिए गए और खंजीर भी। इनमें जो जवान थे वो बंदर हो गए और जो बूढ़े थे वो खंजीर बना दिए गए। हज़रत इब्ने अब्बास से ये भी मनकूल है कि जो कौम मसख होती है वो मसख शुदा हालत में 3 दिन से ज़्यादा नहीं रहती। इन 3 दिनों में इन्होंने कुछ खाया ना पिया और इनकी नस्ल भी नहीं चली। ये जो बंदरों और खंजीरों की नस्ल हैं, मसख शुदा कौमों की नस्ल नहीं है, बल्कि ये सब अल्लाह ताला की मुस्तकिल मखलूक है। कहते हैं कि इस वाक़या की मज़ीद तफसील इंशाअल्लाह सूरह आराफ में भी बयान होगी। अल्लाह ताला की तरफ से मासी की वजह से कई तरह से इन लोगों के ऊपर अजाब आता रहा। इनमें से एक तरीका सूरत मसख करके हलाक करने का भी था। उम्मत मुहम्मदिया के सलातुल व तहियात अब तक मसख के अजाब से महफूज चली आ रही है, लेकिन कुर्ब क़यामत में मसख होगा। उम्मत मुहम्मदिया में भी लिखा हुआ है हदीसों में, जैसा कि सुनन तिरमिज़ी किताबुल फितन में हदीस है के आखिर में तसरीह है, और सही बुखारी की एक हदीस में भी मसख किए जाने का ज़िक्र है। मिशकात में भी जितने भी अजाब आए सब में इबरत है इन लोगों के लिए जो अजाब के वक्त मौजूद थे और उनके लिए भी जो बाद में आने वाले हैं, और इन अजाबों में नसीहत भी है अल्लाह से डरने वालों के लिए। ख़ास कर ये मसख का अजाब तो बहुत ही ज़्यादा इबरतनाक है। हालांकि हलाक तो हो ही गए, लेकिन हलाकत से पहले 3 दिन जो बंदर रहे, इसमें सबके लिए बहुत बड़ी इबरत और नसीहत है। इसीलिए फरमाया कि हमने इनको इबरत बना दिया उन लोगों के लिए जो उस वक्त मौजूद थे और जो बाद में आने वाले हैं, और नसीहत बना दिया डरने वालों के लिए। वजअलनाहा, नसीहत बना दिया। वो बनी इसराइल मुर्दा हैं जो इस इबरतनाक वाक़े के बाद बाकी रहे। ये फिर इसके बाद मुर्दा हो गए, वही बनी इसराइल इस वाक़े के बाद। फिर वो बनी इसराइल ज़िंदा हैं जो इस वाक़या के बाद, इबरतनाक वाक़या के बाद बाकी रहे और ज़िंदा रहे। ये वाक़या उनके लिए भी इबरत है, ताकि अपने असलाफ यानी पिछले वालों से देखें जैसा अमल ना करें, उनको देखकर ऐसे अमल ना करें। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत मुराद है। मुफस्सिरीन मौइज़तुल लिलमुत्तक़ीन के बारे में फरमाया कि इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत भी मुराद है, क्योंकि अल्लाह पाक ने कहा कि ये नसीहत है तुम्हारे लिए भी ऐसे काम। तो मुफस्सिरीन इब्न कसीर ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत नकल किया है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन चीज़ों का इर्तिकाब ना करो, उन चीज़ों का इर्तिकाब ना करो जिनका यहूदियों ने इर्तिकाब किया। हीलों के ज़रिया अल्लाह की हराम की हुई चीज़ों को हलाल मत करो। असनाद ये यहूदियों ने एक और भी हिला किया, वो ये कि इन पर चर्बी हराम कर दी गई थी। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्होंने यहूदियों ने अच्छी सूरत में बनाकर बेच दिया।
शरह हदीस ने अच्छी सूरत में बनाने का मतलब ये लिखा है कि चर्बी को इन्होंने पिघाल दिया और इसमें कुछ मिलाकर दूसरा कोई नाम रखकर इसको बेच दिया। इसकी कीमत खा गए। उम्मत मुहम्मदिया ये आला साहिबुल सलातुल तहियात में इस तरह के हीले रवाज पाए गए हैं। एक हदीस में है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोग शराब को हलाल कर लेंगे। अर्ज़ किया ये कैसे? सहाबा ने, हालांकि अल्लाह ताला ने तो शराब को की हुर्मत वाज़े तौर पर नाज़िल फरमाई है। आपने फरमाया बिस्मूनिहा बिगैरी अस्माहा फसा यस्तहलूनहा, यानी वो शराब का दूसरा नाम रख लेंगे और इस तरह इसको हलाल कर लेंगे। चुनांचे आजकल ऐसी बातें सुनने में आ रही हैं, शराब पीते हैं इसका नाम दूसरा रख लेते हैं, शराब पीते हैं नाम दूसरा रख लिया, सूद लेते हैं इसका नाम नफ़ा ले लिया, ज़कात की अदायगी से बचने के लिए तदबीरें कर लेते हैं, तस्वीर मूर्तियाँ हलाल करने के लिए हीले तराश करते हैं, दाढ़ी मूंडने के लिए जवाज के लिए हुज्जतें निकालते हैं। ऐसे हीलों और बहानों की तफसीलात बहुत हैं।